Namaskar friends, all of you are really welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Divedi. Exercise, which is a joint exercise actually, a military joint exercise between India and France is going to be conducted in Meghalaya. This exercise is by the name of Exercise Shakti. Other than this, India also conducts other exercises with France, that is Exercise Varuna and Exercise Garuda. In today's class, we are going to talk about these many exercises, where were they conducted earlier, what is the significance of them, and the other joint exercises that India conducts with other countries. तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं. Joint military exercise between India and France is known by the name of Exercise Shakti. This is going to be conducted from 13th to 26th of May. And this will be the 7th edition. Before this, the 6th edition was conducted in France. यानी कि ये particular exercise है, ये alternatively conduct की जाती है. जब फ्रांस में होती है, उसके बाद इंडिया में होती है, फिर उसके बाद फ्रांस में होती है. इस तरह चलता है. और यहाँ पे joint training node उमरोई मेघालय में ये होगी. मेघालय over here. Alright, let's move forward. France is actually a country in Europe which is surrounded by many other important countries. A question can be asked that how many countries or which countries border France. So you must know about it. France is bordered by Belgium, as you can see over here. Here is Luxembourg. Thereafter, here is Germany and Switzerland as well. There is also Italy, and over here we have Spain. This is the Mediterranean Sea and this is the Atlantic Ocean, as you can see. France has its capital at Paris. So you have to remember these many things because these could be asked. Other than this, the Pyrenees mountains are over here and the Alps also pass through the France. We know it as French Alps. Now let's talk about the Exercise Shakti. This particular exercise was started in the year 2011. First you have to remember that. And as I said, it is alternatively conducted where in India and France. जब फ्रांस में हुई थी 6th edition, इसीलिए 7th edition इंडिया में हो रही है. You have to remember that. It's a biennial exercise. What does it mean? That means it is conducted once every 2 years. हर 2 साल में एक बार ये कंडक्ट कराई जाती है. ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा. एम क्या है? देखो, एम किसी भी जॉइंट एक्सरसाइज का ये होता है कि रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ डिफेंस सेक्टर में बेटर होता जाए. उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अपने में सीखें और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको बताएं. साथ ही साथ दोनों आर्मीज़ के बीच में एक ट्रस्ट और भरोसा भी जगाना होता है. कल के दिन कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है या कोई भी ऐसी वॉर सिचुएशन आती है जिसमें इंडिया अपने फ्रेंड्स के साथ कोई काम करा सकता है, डिफेंस या फिर ऑफेंसिव, तो ये एक्सरसाइज एक मॉक की तरह काम करती है. जैसे आप लोग मॉक पेपर देते हैं ना, उसी तरह ये मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं. तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड बिल्डिंग ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. अगर कहीं मेडिटेरेनियन सी में, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में भी नेवी एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ फ्रांस की, वहाँ अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डिज़ास्टर रिलीफ या डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना हो, देयर आफ्टर किसी भी तरह का कोई वहाँ पे स्टॉर्म आया हो, जैसे स्टॉर्म डैनियल आया था जिसने लीबिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, वहाँ अगर सुरक्षा करनी हो तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जिसमें इंडिया फ्रांस के साथ काम कर सकता है. सो इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वरुणा एंड द गरुड़ा military exercises. Varuna exercise is a bilateral naval exercise. That means it is conducted between the Navy of India and the Navy of France. तो यही सब आपको याद रखना होता है कि कौन सी आर्मी एक्सरसाइज है, कौन सी नेवी की एक्सरसाइज है, कौन सी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है. वैसे तो शुरू इसको कर दिया था 1983 में, बट जो नाम वरुणा रखा गया है उसको 2001 में ही रखा गया, 2001 में आया था. तो ये याद रखना है, एक्सरसाइज वरुणा 1983 में शुरू हो गई थी, बट उसकी नेमिंग कब हुई है? 2001 में. 21st एडिशन इस एक्सरसाइज का अरेबियन सी में हुआ था 2023 में. तो मतलब ये भी ऑल्टरनेटिवली होती है, इंडियन ओशन में भी होती है और मेडिटेरेनियन सी में भी होती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से ही सटा हुआ है फ्रांस, तो मेडिटेरेनियन सी में होती है. इसके अलावा इंडियन ओशन में हो चुकी है लास्ट ईयर 2023 में. अब क्या होगी? अभी मेडिटेरेनियन सी में होगी. ये है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर. ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, बोथ RAS और UPSC.
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज मेडिटेरेनियन सी इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो इशू चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ग्रीस, बाकी अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज़ है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ सटी हुई हैं। यहाँ पे आपका सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, ये इजिप्ट है बेसिकली आपका। देयर आफ्टर हियर इज़ लीबिया, और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ सिद्रा है। हमने, आपको पता है, इससे रिलेटेड एक मैप सेक्शन भी शुरू किया है। मैप सेक्शन यूपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे आता है। अगर आपको ऐसे मैप्स सीखने की उम्मीद है या सोच रहे हैं कि मैप्स सीख लेंगे तो बेटर हो जाएगा, तो आप यूपीएससी उत्कर्ष पे ज़रूर हर मंडे को शाम को 4 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द गल्फ ऑफ सिद्रा, देयर आफ्टर हियर इज़ द टूनिशिया, हियर इज़ अल्जीरिया, and here is Morocco. You must have also heard about Gibraltar. So here is Gibraltar and here is the Strait of Gibraltar. ये स्पेन है, एंड स्पेन भी ऐसे देख रहे हो आप जैसे कि it is bordering Mediterranean Sea. There are small islands such as Ibiza, Majorca, Minorca. Here is France. Here is Corsica, जो एक बहुत मूवी में आया था. There is Sardinia as well. यहाँ पे मोनाको है, बहुत स्मॉल सी रीजन. देयर आफ्टर हियर इज़ इटली एंड हियर इज़ द आइलैंड ऑफ सिसिली. यहाँ माल्टा भी है. यहाँ पे बहुत सारे सीज़ हैं जो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट माने जाते हैं, जैसे कि टिरहेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी भी यहाँ पे सिचुएटेड है. फिर आप देख रहे हैं कि ये बॉस्पोरस का स्ट्रेट है और ये डार्डेनल्स का स्ट्रेट है. डार्डेनल्स और बॉस्पोरस दोनों तुर्की के अंडर आते हैं. यहाँ पे ब्लैक सी है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से. ये ब्लैक सी अगर हम जानें तो कि कहाँ से कनेक्टेड है, बॉस्पोरस से सी ऑफ मार्मरा. ये सी ऑफ मार्मरा है, छोटा सा बॉस्पोरस के बियॉन्ड. सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी बॉस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्टेड है. देयर आफ्टर मेडिटेरेनियन सी और सी ऑफ मार्मरा डार्डेनेल्स स्ट्रेट से कनेक्टेड है. तो ये ऐसे कि आप देख रहे हैं कि मेडिटेरेनियन सी खुद में ही एक मैप से रिलेटेड बहुत बड़ा एक न्यूज़ हो जाता है. जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज गरुड़ा. और एक्सरसाइज गरुड़ा कंडक्ट की जाती है इंडिया और इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्सेस के बीच में सिंस 2003. ये जनरली 2 years में 1 time कंडक्ट कराई जाती है. जो 7th गरुड़ा एक्सरसाइज हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए जानना. 7th गरुड़ा एक्सरसाइज कराई गई थी जोधपुर राजस्थान में 2022 में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अब जान लेते हैं कि इंडिया और फ्रांस डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. देखो, फ्रांस इज़ इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर आफ्टर रशिया. रशिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे फ्रांस है. अगर आपको रफाले याद होगा तो हमने रफाले एयरक्राफ्ट फ्रांस से ही लिया है. फ्रांस अकेली वेस्टर्न कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने इंडिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर करने की यू कैन से एक इनिशिएशन ली है. बिकॉज कोई भी कंट्री अगर डिफेंस शेयर करती है हमारे साथ, दैट कंट्री शोज़ इमेंस रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस टू दैट कंट्री. देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो कोई भी खोल सकता है. अगर कोई अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी या नॉलेज शेयर करना चाहता है, दैट इज़ ग्रेट फॉर अस. मूविंग ऑन, इंडिया के साथ कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो दूसरी कंट्रीज़ कंडक्ट करती हैं. ऐसे क्वेश्चंस बोथ RAS और UPSC में पूछे जाते हैं. सो कीप इन माइंड, जॉइंट एक्सरसाइज जो आर्मी के थ्रू कंडक्ट की जा रही हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, बांग्लादेश के साथ हम संप्रति करते हैं. संप्रति याद रखिएगा, ये आर्मी के द्वारा करवाई जा रही हैं. चाइना के साथ हम हैंड इन हैंड करते हैं. फ्रांस के साथ जैसे कि मैंने बताया शक्ति है. इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति. तो एक एक्सरसाइज है आर्मी की गरुड़ शक्ति के नाम से, ये इंडोनेशिया के साथ है. फिर उसके बाद कजाकिस्तान के साथ हमारे साथ है प्रबल दोस्तिक. देयर आफ्टर अगर किर्गिस्तान की बात करें तो एक्सरसाइज खंजर है. देयर आफ्टर अगर मालदीव्स के साथ करें बात, ये इक्विरिन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये. मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट है. म्यांमार के साथ IMBEX. नेपाल के साथ सूर्य किरण. ओमान के साथ है अल नगा. यहाँ पे इतनी सारी एक्सरसाइजेज याद करने की आवश्यकता है. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं. रशिया के साथ एक्सरसाइज इंद्र है. सेशल्स के साथ लमित्य है. श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति. थाईलैंड के साथ मैत्री. UK यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर.
यूएसए के साथ 2 एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है और वज्र प्रहार है। वियतनाम के साथ विन बैक्स है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फोर्स 18। जॉइंट एक्सरसाइज नेवी के बीच कौन कौन सी है? एक तो है ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिंडेक्स, बांग्लादेश के साथ इंडो बांग्लादेश कॉर्पैट, देर आफ्टर ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका के साथ इप्समार करते हैं। फ्रांस के साथ वरुणा है, इंडोनेशिया के साथ एक तो इंडो कॉर्पैट है, दूसरा इंडो बायलैट है। मलेशिया के साथ इंडो मलेशिया टेबल टॉप एक्सरसाइज है, IMCOR और INMN बायलैट म्यांमार के साथ है। ओमान के साथ नसीम अल बहर है, ये नेवी एक्सरसाइज है। रशिया के साथ इंद्र नेवी है, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स है। थाईलैंड के साथ इंडो थाई कॉर्पैट, UAE के साथ इंड UAE बायलैट। कोंकण एक्सरसाइज हम यूके के साथ करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हम USA के साथ और रिम्पैक भी USA के साथ। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज कोमोडो है और मिलन एक्सरसाइज, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये इंडिया की है। एयरफोर्स की बात करें तो बांग्लादेश के साथ टेबल टॉप है, इजराइल के साथ एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग है हमारी, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज 4, रशिया के साथ एक्सरसाइज इंद्र, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भी है, सियाम भारत थाईलैंड के साथ है। UAE के साथ डेजर्ट ईगल एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, UK के साथ इंद्रधनुष और USA के साथ रेड फ्लैग। फिर उसके बाद एक्सरसाइज संवेद हमारे साथ है बांग्लादेश के साथ, नेपाल, श्रीलंका और UAE। इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी थी। आई होप यू विल कंटिन्यू टू शो द सपोर्ट दैट यू आर शोइंग टू दिस चैनल एंड आई होप यू विल शेयर दिस विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अप।